यस। तो 135 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जून 2022 का। The subjects or the topics which will be covered here are the solution, phase equilibrium, conductance, electrochemistry, functional group, organic chemistry. Okay, so part A. So part A में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बोला, the process of steam distillation. So steam distillation, as I said you, it is a process used to separate what? Two substances from a mixture. एक volatile एक non volatile होगा। जो volatile होगा वो आपका बीकर में आके as a pure component separate हो जाएगा, जो non volatile होगा वो round bottom flask में रह जाएगा। So you have to draw the diagram. Round bottom flask, stand. Okay, put the stand here, and here it is a condenser, it is a beaker. Label this, and completely explain the diagram. Okay, so this is a 5 marks. Next, coming to how many components are there in a system in which ethanol, so CH2O5OH is a ethanol, and acetic acid, so CH3COOH is a acetic acid, reacts to form ethyl acetate. तो ये आपको एस्टर बना के दे रहे हैं, तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? सो आई थिंक यू रिमेम्बर दैट कि कंपोनेंट्स कैसे आप कैलकुलेट करते हैं ना। तो इसमें होंगे आपके 3 कंपोनेंट्स। ओके, व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। सो आप जब देखोगे तो आपको मिलेंगे सी दिस इक्वेशन। जब मैंने फेज इक्विलिब्रियम पढ़ाया तो ये पढ़ाया था, दैट इज व्हाट when acetic acid ethanol reacts, ethyl acetate forms, that is ester. Now the components will be 3, as there will be one restriction due to equilibrium. So this can be converted into this can be converted into this. Okay, so 1, 2 and 3 components will be considered here. But if 2 restrictions will become, so 2 components can also occur, that is ethyl acetate and water formed in the reaction are equal in number. So they 4 minus 2 will be there. C dash minus R components are find करते हो when substance react with each other, है ना। 2 टाइप के पढ़े। Okay, now coming to the Clapeyron-Clausius equation which you have to what? Derive here. So derivation is, I'm just explaining you Clausius-Clapeyron equation. So it is an important equation जो आपको आई है और आपको आती है। Okay, so just wait a minute. This, okay, this equation, that is this is a Clapeyron equation. Okay, this is a Clapeyron equation which you have to derive it. Now जब म्यू वर्सेस टी, म्यू वर्सेस पी हमने डायग्राम्स पढ़े थे, तब मैंने आपको इक्वेशन डिराइव करके बताई थी, एक्सप्लेन की थी। तो क्लॉशियस की अलग बताई थी, क्लेपेरॉन की अलग बताई थी। ओके, एंड दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन जो कि क्लेपेरॉन क्लॉशियस इक्वेशन थी, दैट वाज दिस इक्वेशन. So you have to derive this equation here, okay, in 3 marks. Now coming to what? Noveloff's rule. So Noveloff's rule ये solution का part है. Noveloff's rule ये कहता है कि जो आपका वेपर प्रेशर में कॉम्पोजिशन होगा वो उस कंपोनेंट का होगा जो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, है ना। सो द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट Noveloff's rule is that कि the vapor pressure in a liquid mixture, there is a higher proportion of that component, okay, which when added to a liquid raises its vapor pressure. Okay, तो वो कंपोनेंट जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा वो आपका वेपर फेज में मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो ये आपको सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखना है, दिस इज अ 1 मार्क्स। नाउ यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर मैंने आपको किसमें समझाया था? फेज इक्विलिब्रियम 2 में आपको यूटैक्टिक मिक्सचर समझाया था जब हमने लेड और सिल्वर का डायग्राम पढ़ा था। तो इट इज व्हाट? यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है? यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, दिस इज, I told you कि this is very important. Eutectic mixture, eutectic point, eutectic temperature and the composition. Okay, तो वो point जहां पे आपको सिर्फ क्या मिलता है? क्या मिलता है?
You will tell me eutectic mixture का definition. Who will tell me? It is a temperature where melts, है ना, the liquid जो है आपका, the mixture melts sharply at eutectic temperature to form liquid. सेम कंपोजिशन होता है यूटेक्टिक पॉइंट पे, जो दो सॉलिड्स आपको मिलते हैं, दैट इज सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड, ये यूटेक्टिक पॉइंट पे मिलते हैं. एंड जब आप यहाँ पे प्योर आपका लेड है, यहाँ प्योर सिल्वर है, व्हेन यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर और यू विल एड हियर द सिल्वर, इट विल डिक्रीज. यहाँ पे अगर आप क्या ऐड करते हो, यहाँ लेड ऐड करते हो, तो ये डिक्रीज होकर टेम्परेचर, ये आपको यूटेक्टिक पॉइंट मिलेगा. इस यूटेक्टिक पॉइंट पे आपको दोनों अमाउंट मिलेंगे, दैट इज सिल्वर एंड द लेड, और उसका कंपोजिशन सेम होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यूटेक्टिक मिक्सचर. आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन करना है, सो यू विल define through the example of lead and silver. Okay, now this is what a simple eutectic mixture diagram का आपको again ये same point आया है explain करने का, तो ये diagram आपको explain करना है. that is what simple eutectic system में liquid curve and what the liquid curve only, these two diagram you will explain here. Okay, the cooling curves. Now coming to what define conductivity of a solution of electrolyte, relationship between conductance and the conductivity of a solution. So conductivity, as you all know that हम इसको G से denote करते हैं, है ना, conductivity को, and conductance. So conductive, this is rho, okay, sorry, and this is G. So ये दोनों को हम G and that is this sigma से हम denote करते हैं. इन दोनों का relation क्या होता है? Relation क्या होता है, किसी को पता है? Conductance is what? Inverse of resistance. Yes or no? Yes or no? And resistance and resistivity का relation क्या होता है? Rho equals to R L by A. Now if you will do what? 1 by sigma. Okay. If you will do inverse of that 1 by sigma, what will happen? Inverse of what will happen? Inverse of अगर आप 1 by sigma करोगे तो 1 by G हो जाएगा. 1 by G हो जाएगा तो क्या होगा? This again will inverse A by L हो जाएगा, है ना? So the relationship will come what? Rho that is sigma equals to G L upon A, and this is what the relation between conductance and the conductivity. So ये just आपको यहाँ पे define करनी है. Conductance is inverse of resistance, you will define it, and then conductivity, and okay. So this is 2 marks question. You just have to what? Write the formula here. Now Colrosh law of independent migration. This is again an important statement जो पढ़ाते टाइम भी मैंने बोला था, ये important है. So what is Colrosh law? What is Colrosh law? At limiting molar conductivity, what happens is it is the contribution of all the ions, like है ना, CH3COOH है, so CH3CO negative plus the H plus ion. If you will calculate, and there is one more equation, okay, for example NaCl, it will break into Na plus in the Cl negative. Now if you will calculate the limiting molar conductivity of one equation which is given to you, उसमें ये होगा कि या तो आपकी ये इक्वेशन भी यूज होगी, ये इक्वेशन भी यूज होगी. सो एट इन्फिनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी? इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस, ओके, फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन. सो Colroy law states that what's the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of all the individual ions formed. Okay, now इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है कि इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ व्हाट, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो Colroy लॉ को यूज करके. सो these are some important applications. Okay, degree of dissociation कैलकुलेट कर सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की. सो इंपॉर्टेंस में ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो. Now coming to what? How does the solubility of gas change with decreasing temperature? So it is an exothermic process. So accordingly you will answer it कि temperature बढ़ाओगे तो क्या होगा, temperature कम करोगे तो क्या होगा. Now transference number. Transference number क्या होता है?
ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? जैसे आप लिख रहे हो एनायन का, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, सो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर? द करंट कैरिड बाय पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयन्स. ओके, so transference number, if you are writing, I am writing here positive ka, so what will be the, what will happen? T plus will be what? Current plus current प्लस पॉजिटिव चार्ज इन द नेगेटिव चार्ज. अगेन नेगेटिव का लिखोगे तो यहाँ ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे सम ऑफ टोटल आयंस वही रहेगा. नाउ ये दे आर आस्किंग व्हाट रिलेशनशिप विद द आयोनिक मोबिलिटी. ओके, सो आयोनिक मोबिलिटी के साथ इसका रिलेशन क्या होगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जस्ट लेट्स सी द रिलेशनशिप. सो इफ आई एम सेइंग this is for anion and this is for cation, so what will happen? The relationship with the ionic mobility and the transport number will be Ta, okay, into lambda at the end point. Same, lambda A and the lambda C are the ionic conductivities of anion and the cation, and this is the transport number. Okay, so accordingly यहाँ C का लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? Tc आ जाएगा and infinite पे आ जाएगा. So these are the two equations which you will have to write here. Now you have to calculate ionic mobility of lithium plus ions. So the formula is what? Mu या U equals to L, that is conductivity upon what? Faraday's constant. So 2F. ये formula आप use करते हो. This is L, okay, not U. So आपको conductivity दी हुई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? म्यू. फेराडे की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? फेराडे की वैल्यू होती है क्या? क्या होती है? 9648 समथिंग होती है ना, तो आप इसको 965 भी राउंड ऑफ में लेके सॉल्व करके यहाँ पे आयोनिक मोबिलिटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी. सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है. नाउ व्हाट द रिएक्शन बिटवीन गैल्वेनिक सेल आपको दिया हुआ है. गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है. कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है. नाउ यू कैन सी हियर निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है. सिल्वर का क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि प्लस से जीरो में जा रहा है, मतलब यहाँ 1 से 0 में जा रहा है. तो हाफ सेल रिएक्शन आपको क्या लिखनी है? एनोड की एंड कैथोड की. तो ये पूरी रिएक्शन उठा के लिख दोगे एनोड पे, ये पूरी रिएक्शन लिख दोगे कैथोड पे. दैट इज व्हाट? Ni solid converting into what? Ni plus Ni2 plus aqueous, एंड यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, एंड यू विल राइट एनोड एंड कोलन, एंड यहाँ पे निकल की रिएक्शन, एंड देन कैथोड की रिएक्शन में सिल्वर का लिख दोगे. नाउ आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है. सो ईएमएफ क्या होता है? कैथोड माइनस, व्हाट इज ईएमएफ? कैथोड माइनस क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड होता है ना. तो दिस इज व्हाट? दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. पुट कर देना एनोड कैथोड की वैल्यू, आ जाएगी आपकी वैल्यू. नाउ स्पॉन्टेनियस और नॉट. सो ई अगर नेगेटिव आता है आपको सॉल्व करने पे तो इट विल बी स्पॉन्टेनियस, अगर नहीं आता है तो इट विल बी स्पॉन्टेनियस. ओके, नाउ कमिंग टू मोलैलिटी. सो मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m. मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना. यहाँ पे आपका सॉल्वेंट जो होता है इट इज टेकन इन अ kg. मोलैरिटी में यू टेक द वॉल्यूम, है ना. यहाँ पे आप मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हो. सो अगेन इट इज अ डेफिनेशन, आपको 1 मार्क्स की डेफिनेशन यहाँ लिखनी है. नाउ लीव दिस क्वेश्चन. नाउ 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल की आपको वो बतानी है. क्या बताना है? एप्लीकेशंस. सो एप्लीकेशंस में आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड कह रही हूँ, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस जब इवॉल्व होती है तो आप उस सेल का वाटर से एप्लीकेशन लिख सकते हो. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लिख सकते हो. ओके, एंड एक लिख सकते हो एल्यूमिनियम वाला, कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, तो 2 लिख लिया, कोई भी 2 लिख सकते हो. नाउ कमिंग टू कंसंट्रेशन सेल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. तो ये आपको मिलेगा, किस में मिलेगा? कंडक्टेंस वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा. इसका डायग्राम लिखा हुआ है वहां पे, बना हुआ है. डायग्राम कह रही हूँ, समझाया हुआ है मैंने. ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट बी, दैट इज व्हाट? हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन, दिस इज ऑर्गेनिक. ओके, सो ब्यूटेनोइक एसिड को आप एन एन डाइमिथिल ब्यूटेनामाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो दिस रिएक्शन इज वेरी इजी, बट सिंस इट इज ऑर्गेनिक तो सबको डिफिकल्ट लगता है. So you have to take what benzoic acid you will take here, COOH, and what you will take here? You will take here N, this is H, N, and what? आपको क्या चाहिए है? NN डाइमेथिल ब्यूटेनामाइड, है ना.
So CH2 CH3, what will happen? O and the H water molecule release हो जाएगा and यहाँ पे आपका N dimethyl ऐड हो जाएगा जाके, you will get N dimethyl butanamide आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, so this is very easy reaction है ना, 1+3. और मैकेनिज्म आपका पूछा है तो मैकेनिज्म आपको बताना ऐसे ही है कि फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ दिस कैटायन एनायन एंड देन लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन अटैक ऑफ दिस एंड दिस. आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसका लिखना. नाउ कमिंग टू व्हाट, होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड्स सबको पता है क्या होते हैं. व्हाट आर होमोपॉलीसैकेराइड्स? यस, व्हाट आर होमोपॉलीसैकेराइड्स? No, homo means same. Polysaccharide means many units. So when same units combine to form what? Polysaccharide, it is known as homopolysaccharide. Okay, now coming to what, mechanism of Hoffman bromamide. So this is a long mechanism. इसको मैं explain कहाँ करूँ, जगह भी नहीं है. चलो यहाँ देखते हैं अपन. ओके, सो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड में होता क्या है? सबसे पहले तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आपका ब्रोमीन रिएक्ट करता है या हॉफमैन रीअरेंजमेंट में प्राइमरी अमाइड के साथ एंड एन ब्रोमोमाइड बनता है ना, अमीन बनता है आपका प्राइमरी अमीन. सो रिएक्शन स्टार्ट होती है प्राइमरी अमाइड से, तो RCOO है ना, NH2 आपने यहाँ पे लिया मान लो. ओके, यहाँ पे लोन पेयर है, इसके साथ रिएक्ट क्या कर रहा है? ब्रोमीन. तो ये अपना एक ले लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव. इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो ये ब्रोमीन इससे जाके अटैच हो जाएगा. ये ब्रोमीन नेगेटिव तो निकल गया, इसलिए यहाँ माइनस लिख दो. अब क्या बचा? यहाँ पे पॉजिटिव बचा. व्हाट विल हैपन? RCOO ऐसे ही रहेगा. N से आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है. देन व्हाट विल हैपन? ये इस पे लेगा, दैट इज व्हाट, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा. अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज था है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था. जब ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा? ये स्पीशीज कन्वर्ट किस में हो जाएगी? RCOO. एंड देन व्हाट विल हैपन? NBr बचेगा और NH बचेगा. ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. उसके बाद आपका क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ कार्बन एटम. सो दिस आई एम रबिंग erasing this part and again starting with this. Okay, so what will happen? Let's see here. This will be rearrangement will be there. Okay, now how will the rearrangement? This bond will shift here, this bond will shift here, this NH bond will shift here. इसके कारण आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, what will be the product? This is N C, this is single bond, this is what, double bond. And then what will happen? अगेन इस C से क्या जुड़ा हुआ है अभी आपका? इस C पे पॉजिटिव चार्ज है और N पे ये चार्ज है. नाउ व्हाट विल हैपन? इस पे लोन पेयर थे, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा. जब भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे क्या बॉन्ड आ जाएगी? डबल बॉन्ड आ जाएगी. तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग मैकेनिज्म. ओके, इसको अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, कि अगर इसमें एक भी स्टेप गलत होता है तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. ये जो कंपाउंड बना आपका, इट इज आइसोसाइनेट है ना, और इतना सब याद रखना भी मुश्किल होता है. सो दिस इज व्हाट, आइसोसाइनेट. फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. नाउ दिस आइसोसाइनेट रिएक्ट विद व्हाट? दिस वाटर मॉलिक्यूल. इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा कार्बोमिक एसिड. कार्बोमिक एसिड में क्या होगा? NCOO. एसिड है तो COOH रहेगा. यहाँ पे आपका N के साथ क्या था? R ग्रुप जुड़ा था. अब इसके साथ फिर से रिएक्शन किसकी होगी? वाटर मॉलिक्यूल की. वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी, फिर आपका प्राइमरी अमीन बनेगा. सो दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग मैकेनिज्म है ना. अगर नहीं बनता है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बन जाएंगे. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. व्हाट नाउ, व्हाट इज द क्वेश्चन? नाइट्रोसेशन रिएक्शन क्या होती है? ओके, सो नाइट्रोसेशन रिएक्शन के लिए ये पार्ट आपको रेफर करना है. दैट इज जब आपका नाइट्रोसोनियम आयन बनता है तो इट इज अ व्हाट? पॉजिटिव. सो इट इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. ओके, now this when react with different amines, okay, like for primary amine and what secondary amine, so what happens is different आपको products मिलते हैं. So
वो प्रोडक्ट्स आपको इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, दैट इज व्हाट इज अ नाइट्रोसेशन रिएक्शन, राइट द नाइट्रोसेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स, कब, प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक, ओके, स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक, सो रिंग, सेकेंडरी एरोमेटिक, टर्शियरी एरोमेटिक, चार के साथ आपको पूछे गए हैं प्रोडक्ट्स। सो यू विल सी दिस, तो आपको क्या मिलेगा कि स्टार्ट विद दिस, ओके, नाइट्रोसोनियम आयन आपने ये लिया, जब इट रिएक्ट्स विद डिफरेंट अमीन्स दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रोसेशन रिएक्शन। नाउ व्हेन नाइट्रोसेशन रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ होगी, तो सिंस दिस इज अ प्राइमरी अमीन तो केमिस्ट्री सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो आपका क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब ये दिस कार्बोकैटायन यील्ड्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स, तो ये जो कार्बोकैटायन बना, जब इसकी फर्दर रिएक्शन होगी तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ इफ यू विल सी व्हाट, एरिल, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ओके, सो अगेन व्हाट विल हैपन, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, बट इट इज अ एरीन, व्हाई, क्योंकि एरिल रिंग है। एलिफेटिक होता तो नॉर्मल आपका एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनता, बट इट इज अनस्टेबल, इसलिए हम ये वाली रिएक्शन यूज करते हैं। नाउ सेकेंडरी अमीन के साथ होगा तो एन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिस इज अ सेकेंडरी अमीन। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एन नाइट्रोसो डाइमिथिल अमीन, है ना। तो अगेन यहाँ पे पहले एक इंटरमीडिएट बनाया, फिर ये HCl माइनस हुआ, यहाँ से HCl माइनस हुआ, तो यू आर गेटिंग व्हाट, नाइट्रोसो अमीन, क्योंकि NO ग्रुप है ना। नाउ अगर आपका टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन होती है तो सेम प्रोसेस, है ना, जो भी आपका ये ग्रुप था, ये ग्रुप यही रहेगा, बस यहाँ पे ये ग्रुप आके जुड़ गया, यहाँ पे भी NO ग्रुप आके जुड़ गया। सो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट रिमेंबर नाइट्रोसेशन रिएक्शन में N डबल बॉन्ड O ग्रुप आके अटैच होता है। सो दिस इज व्हाट this answer to this question. Now how will you convert aniline to following compound? So this question is interesting, but uh, let's see how will you convert. So aniline जब भी आए ना, तो आपको किस उससे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डायजोनियम सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप डायजोनियम सॉल्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तभी आप ये सारे प्रोडक्ट्स बना पाओगे, ओके, क्योंकि आप ये बॉन्ड तो ब्रेक कर नहीं सकते इजीली, है ना, तो बॉन्ड तो ये सारी ही ब्रेक होंगी। ओके, नाउ यू विल सी व्हाट आपको बनाना है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको एनिलीन है आपके पास, कन्वर्ट इट इनटू डायजोनियम सॉल्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इट, NaNO2 एंड द HCl, है ना, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, N2Cl पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, ये आ गया। नाउ कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में दिस इज व्हाट, सेंडमेयर्स रिएक्शन, ये मैंने एक और शायद पेपर जब मैं फर्स्ट ईयर कराई थी तब भी मैंने बताया था, उनको भी एक क्वेश्चन आया था, ओके। सो अगेन क्लोराइड है तो यहाँ पे आपका सीधे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ओके, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, ये आपका मिला क्या, क्लोरोबेंजीन। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट फिनॉल, सो फिनॉल की डायजोनियम क्लोराइड के साथ सेम रिएक्शन, जस्ट चेंज हियर व्हाट, यू विल राइट हियर व्हाट, वाटर। जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको यहाँ क्लोरोबेंजीन की जगह फिनॉल मिल जाएगा। सो दिस अगेन रिएक्शन इज इजी। नाउ यू विल डू व्हाट, आयोडोबेंजीन बनाना है, आयोडोबेंजीन अगेन सेम रिएक्शन, यहाँ पे क्या कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, कैटलिस्ट यहाँ चेंज हो जाएगा आपका Ki, है ना, Ki क्योंकि आयोडीन है, यहाँ आयोडीन आ जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे आपको बेंजीन बनाना है तो अगेन एनिलीन से शुरू करो ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है ये वाली, बस क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट पूरा अमीनो ग्रुप हटाना है ना, तो इसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट डिफरेंट हो जाता है, दैट इज एनिलीन, इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 एंड व्हाट, HNO3 HNO2 की प्रेजेंस में, एंड आपका बनेगा बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। HSO4 जो है यहाँ से एक H हटे, दो H हटेंगे एंड ये वाला H भी हटेगा, और आपको HSO4 नेगेटिव आयन जो है वो मिलेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड देन H3PO2 की प्रेजेंस में आपको बेंजीन मिल जाएगा, ओके। सो ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, तो ये सारे आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से रिफर करते हुए कन्वर्ट करते जाना है, रिमेम्बरिंग द कैटलिस्ट। नाउ कमिंग टू व्हाट, कि आपकी माल्टोज में कौन सी लिंकेज है, विच टाइप ऑफ लिंकेज कनेक्ट्स माल्टोज। सो माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज में आपका α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, ओके, एंड दिस इज जस्ट आपका एक है, तो α1,4 आपको लिख देना है नाम यहाँ पे। नाउ अगेन दिस, इसका PDF मैंने आपको भेजा है, मेरीफिल्ड सिंथेसिस, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि ये आपको
डेरिवेशन खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर इसका पीडीएफ चाहिए है तो मैं फिर से एक बार भेज दूंगी। नाउ दिस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ, आपको प्रोटीन एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। स्ट्रेट चेन एलिफेटिक, सेकेंडरी में आपका दो हेलिक्स आ जाएंगे, अल्फा एंड बीटा हेलिक्स। टर्शियरी में आपकी फर्दर फोल्डिंग 3D स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी में और फर्दर फोल्डिंग आपका, है ना। तो ये सारी आपको ड्रॉ करनी है स्टेजेस, एंड राइट लिटिल लिटिल पैराग्राफ एंड देन ड्रॉ द डायग्राम एंड देन एक्सप्लेन। नाउ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। तो नेम द प्रोडक्ट्स है तो ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। नाउ दिस इज व्हाट रफ डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने जब चेन शॉर्टनिंग पढ़ाई थी, याद करो, क्योंकि चेन लेंथनिंग का तो सिर्फ एक ही एग्जांपल था जो कि किलियानी सिंथेसिस थी, वो की नेम्ड रिएक्शंस थी। ओके, तो मैंने आपको बताया था किलियानी सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें आप क्या गैलेक्टोज से स्टार्ट करते थे। सो रफ डिग्रेडेशन आपका क्या है, एल्डो हेक्सोस से आपको एल्डो पेंटोज बनाना है। तो 6 कार्बन यहाँ है, यहाँ 5 कार्बन है। तो ये रफ डिग्रेडेशन आपकी, अगेन इट इज अ नेम्ड रिएक्शन, 4-5 स्टेप्स हैं इसके, refer to the carbohydrate portion. Okay, now coming to what, name the monosaccharide units which are linked together in the cellulose. So cellulose किससे मिलके बना होता है, आपको तो पता है किससे मिलके बना होता है? Yes or no? Cellulose प्लांट्स में होता है ना, किससे मिलके बना होता है, जल्दी बताओ, क्योंकि इसके बाद हमें दूसरा पेपर भी सॉल्व करना है, and we will just see the overview of it. ग्लूकोज से मिलके ही तो बना होगा ना सेल्यूलोज, है ना। ओके, सो दिस वाज योर जून का पेपर, जो आपको 2022 का पेपर था। नाउ यू विल सी, क्या यू विल, व्हेन यू विल सी द दिसंबर का पेपर, सो यू विल अगेन एनालाइज व्हाट, कि आपको जो क्वेश्चंस आए हैं आसानी है, बट एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम एक क्वेश्चन था मैम। जैसे मैम इन सारे पेपर में मैम ये मैकेनिज्म बहुत पूछते हैं मैम, तो मैम मैकेनिज्म कभी रिपीट नहीं होता मैम, तो मैम हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बता दो।